class 11th. As you all are aware about it, that we are discussing our chapter 4th, that is known as Executive and the Parliamentary System. And today I have chose this topic, why does the parliamentary system need a constitutional head? Let me repeat again it. Why does the parliamentary system need a constitutional head? In India, as you all are aware about it, that there is a parliamentary system of government. And we have adopted this feature from British Constitution. As I told you and discussed with you in my class that while discussing about the Constitution of India, I told you that we have borrowed so many features of the Indian Constitution from other constitutions of the world. And so far as this feature is concerned, parliamentary system, parliamentary type of government, parliamentary form of government is concerned, we have adopted this feature from British Constitution. So today's topic is why we need a constitutional head. Where there is parliamentary system, remember this thing that there are two heads. One is the real head and another is the nominal head. The real head is that person who is enjoying all the powers, all the actual powers. And the constitutional head or the nominal head is that person who is enjoying only constitutional powers, and somewhere he is bound or she is bound by the advice of other heads like council of ministers headed by prime minister. So बच्चों, मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि हमारी यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. तो जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की क्यों जरूरत पड़ती है? अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जब मैं कल आपको टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया इन अमेरिका देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज एंजॉयिंग ऑल द पावर्स, whether they are real powers, they are constitutional powers. He is the lonely head, so he is enjoying all the powers. There is no other constitutional head. But in parliamentary system there are two heads. Remember this thing. Let me first discuss what parliamentary system means. In a parliamentary form of democracy, there are two types of executives. Remember this thing, real executive and nominal executive. पहले भी मैंने आपसे कहा है, जहाँ parliamentary form of government होती है, वहाँ दो heads होते हैं. एक real head होता है, real executive जिसको कहते हैं, जैसे कि Prime Minister of India, जैसे कि British Council, and another is nominal executive, like the President of India and like the Queen of British. They are enjoying nominal powers. That's why they are known as nominal executives. तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात कि जहां जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां दो हेड्स होते हैं, रियल हेड होता है और नॉमिनल हेड होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. I earlier told you that in a parliamentary system, the president is only a constitutional head. No doubt, constitution has given him or her constitutional powers, but somewhere he is bound. वो आगे हम पढ़ेंगे कहाँ? Like Article 74 made it obligatory for president to act in accordance with the Council of Ministers headed by Prime Minister. क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ दो हेड्स होते हैं, रियल हेड, नॉमिनल हेड होता है. और चूंकि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ के कन्वेंशन के मुताबिक, वहाँ के रिवाज के मुताबिक क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिस तरह से इंडिया में है, या जिस तरह से क्वीन ऑफ ब्रिटिश जो है, दे आर एंजॉयिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, दे आर एंजॉयिंग सर्मोनियल पावर्स ऑनली. क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो क्वीन हो ब्रिटिश की, वो जो होते हैं, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये जरूरी बनाते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि आप तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक ना उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसेंट शामिल हो, और उनका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जब तक ना उसकी वहां पे कंसेंट शामिल हो तब तक आप कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हैं. हियर प्रेसिडेंट is bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister according to Article 74. अब जो कि मैं बता रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन की तरफ कि व्हाई डज द पार्लियामेंट्री सिस्टम नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. अब जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ दो हेड्स की क्या जरूरत थी, वहाँ नॉमिनल हेड की क्या जरूरत थी, वहाँ नॉमिनल हेड की क्या जरूरत थी? क्योंकि पहले भी आपको बच्चों बता दूं कि दो हेड्स डेलिबरेटली रखे गए हैं, क्योंकि एक को दूसरे पे वॉच है और दूसरे को पहले पे वॉच है. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इफ
लेगा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजेक्ट करेंगे, कहेंगे नहीं आप फिर से इसको देखिए जो आपने फैसला लिया है क्या ये सही है या गलत है। यानी दो हेड्स जो है इनको बराबर एक दूसरे पे वॉच है कि कोई भी गलत फैसला ना लिया जाए जिससे देश में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, जिससे देश की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी जाके इन्होंने डिलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रखा है। जो कि मैं अभी बात कर रही थी, एक तरफ से अगर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑन द अदर हैंड, अंडर आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it is the duty of the prime minister to communicate to president all the decisions of the council of ministers relating to the administration and proposal of legislation। याद रखिएगा बच्चों, एक तरफ से मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ भी नहीं, कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकता है जब तक ना उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी शामिल हो। दूसरी तरफ से यहाँ आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अपने आप को खुद मुख्तार ना समझ ले। वो जो भी कोई काम करते हैं, जो भी कोई डिसीजन ले लेते हैं, जो भी कोई पॉलिसीज बनाते हैं पार्लियामेंट में, या जो भी कोई लॉ बनाते हैं, उनको वो सारे डिसीजंस, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जो भी वो प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन बनाते हैं, उनको उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देनी है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज द पर्सन who will guide them, who has a check on their ruling government, who can warn them, who can advise them. So इस तरह से prime minister is also bound to communicate all these decisions, to communicate all these policies of the council of ministers relating to the administration or relating to the legislation with the president of India. So दोनों, एक तरफ से इसको भी, ये भी यहाँ पे छूट नहीं दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी डिसीजन ले ले, उसको रखा गया है ऑब्लिगेटरी यहाँ पे उसके लिए है कि उसको कंसेंट उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की along with प्राइम मिनिस्टर शामिल हो। एंड ऑन द अदर हैंड, अंडर आर्टिकल 78, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, he is not having a free hand to take all the decisions or to make any policy. He is also bound to communicate all these decisions, to communicate all these policies, whether relating to administration or relating to legislation, to the president of India. So the president may even send a decision back for reconsideration. और एक important बात, अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी, जैसे आपने देखा होगा जब भी, अभी आपको आगे पढ़ना है इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। तो इस तरह से जब पार्लियामेंट में कोई बिल जाती है फिर प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे वो लॉ बनती है। अगर दोनों हाउसेस ने बिल को पास किया भी, फिर प्रेसिडेंट के पास जब वो पहुंच जाती है, अगर प्रेसिडेंट को उस वक्त लगा भी कि दोनों हाउसेस ने अपनी कंसेंट दे दी है लेकिन ये बिल जो है ये सही नहीं है, इसको हम लॉ नहीं बना सकते हैं, इससे कल को कम्युनल राइट्स या इससे कल को कोई भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ खड़ी हो सकती है जिससे हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा हो, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। यानी अगर उन्होंने कोई फैसला लिया भी है लेकिन फिर प्रेसिडेंट के पास जब दस्तखत के लिए ये बिल जाती है, तो ये पॉलिसी जाती है, उस वक्त वो अगर उन्हें लगेगा कि ये सही नहीं है, he has a power to send back this bill for reconsideration। याद रखिएगा। So again यहाँ पे एक दूसरे का वॉच, बराबर वॉच। The president also keeps a check on the ruling government by warning, advising and encouraging। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रूलिंग पार्टी ये ना समझ ले कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहां पे भले ही आप कह रहे हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें वो पावर्स दे दिए हैं आर्टिकल 78 के तहत कि वो वहां पे कंप्लीट चेक रखे रूलिंग पार्टी को कि कोई रूलिंग पार्टी गलत तो नहीं कर रही है। उनको अगर देखा कि वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको वार्न कर सकते हैं उनके काम से रिलेटेड कि आपका काम सही नहीं चल रहा है, आपके मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो उस तरह से he has a right to warn them as well as advise them। वो उनको एडवाइस भी साथ साथ में दे सकता है। and they are always bound to seek the advice of president of India। तो बात चूंकि यहाँ पे मीडिएटर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी जानकारी प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट का क्या रद्द अमल होगा, उसका क्या वहां से रेस्पॉन्स होगा, वो डिस्कस होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर थ्रू प्राइम मिनिस्टर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक वो बात पहुंच जाती है। तो इस तरह से वो वार्न कर सकता है इनको, अगर लगेगा कि रूलिंग पार्टी गलत कर रही है, कोई भी मिनिस्टर गलत कर रहा है, कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, उस तरह से उनको एडवाइस कर सकता है। और साथ साथ में अगर उन्होंने अच्छा कुछ किया है तो उनको एनकरेज भी कर सकता है। इस तरह से हमें जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की, क्योंकि दो हेड जब होंगे तो एक दूसरे पे कंटिन्यूअसली वॉच होगा। कोई अगर जल्दी में फैसला लेगा तो
और डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिए और इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए दो हेड जरूरी थे, एक